So, children, I welcome you once again in today's pleasant morning. Very hearty good morning to all of you. So, children, last Saturday in the online class, I was taking the topic how to create your resume. So, in that, I told you about the ways to create your resume, in which I discussed about your education, your skill, your experience, and side by side guidelines also for developing a resume. Now, children, I gave you a homework to create your own resume, and you are supposed to fill your details on page number 47. So, let me discuss with this resume today how you have created. Come on, check it. Children, in the first one, you are going to fill up your name. After that, you are supposed to fill up the date, and in the next box there is a career objective. In the career objective, you are supposed to fill up what do you want to do when you work. Okay, तुम्हारा काम किससे संबंधित है? Like you are supposed to save the lives, you want to teach others, or buildings, or etc. any else whatever you want to do. You are supposed to fill up in that box. What is your dream future? In the second, you are supposed to fill up what is your dream future and what would you like to explore further to see if it is good, if fit for you or not. So, you are supposed to fill up here in this box all these 3 points which are laid down here. Now, second is the education one. Children, in education, we are going to write here, you are in grade 8, you know that it will take more education to get your dream in school provides you. Okay, whatever the school provides you, you have to learn more in order to fulfill your dream. Okay, and with the basics of the things, how you are thinking about that, how you are going to communicate, how you are going to obtain knowledge from others. And if you don't plan your education properly just now, what is going to happen? It is going to delay your success during your working years. So, children, you have to plan out just now in grade 8 itself, okay, your future dreams. So, children, in this you are supposed to fill up in this box what are your future dreams, what you have decided to do. Next is the achievement in schools. Achievement in schools, you are going to supplement here with whatever the credit you have gained here in the schools, in the sports, in debate, allocution, Mehndi competition, Rangoli, whatever you have achieved in the school, you are supposed to fill it up here. After that, education plan, what do you need to do for what you want to be, mark the level of education that apply. Okay, जो भी आप बनना चाहते हो आपको यहाँ पे level of education लिखनी पड़ेगी. Suppose if you want to be a doctor, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल MBBS क्वालिफाई करना पड़ेगा. सबसे पहले नीट एग्ज़ाम तैयार करना पड़ेगा, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आपको 5 years की MBBS करनी पड़ेगी, फिर आपको MS या MD करनी पड़ेगी. तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखनी है. व्हाट एजुकेशन डू यू नीड टू हैव फॉर योर करियर चॉइस, और आपके करियर चॉइस के लिए क्या एजुकेशन है वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी पड़ेगी. सो इन दिस पेज यू आर सपोज टू राइट योर रिज्यूम इन दिस वे. ऑन द नेक्स्ट पेज चिल्ड्रन, दैट इज ऑन पेज नंबर 48. ओके, पेज नंबर 48, कंप्लीट ग्रेड 9 एंड 12. ओके, आपको यहाँ पे लिखना है कि आप जो है 9th एंड 12th में क्या लेना चाहते हो, क्या करना चाहते हो. उसके लिए फिनिश ट्रेड स्कूल अप्रेंटिसशिप, उसके लिए आपको कोई ट्रेड स्कूल, ओके, जैसे इंजीनियरिंग है तो हमको कोई यूनिवर्सिटी से, कोई कॉलेज से, IIT से, उसके बाद आपको जो है या NIT से, या आपको IIIT से, या आपको कोई प्राइवेट स्कूल से ये BE की डिग्री और BTech की डिग्री, जो भी यहाँ लिखना है. फिनिश कॉलेज यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिखना है. फिनिश पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, फिर अदर एजुकेशन रिक्वायर्ड, उसके लिए और भी कोई एजुकेशन, एक्स्ट्रा एजुकेशन रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे लिखनी है. उसके बाद एजुकेशन प्लान क्या है, ठीक है, इसमें पूरा आपको फिल करना है कि आपका एजुकेशन प्लान क्या है. आफ्टर दैट एक्सपीरियंस, इस स्टेज पे आपको वर्किंग एक्सपीरियंस जो है इट इज़ लिमिटेड टू मेकिंग योर बेड. ठीक है, वर्किंग एक्सपीरियंस आपका इस समय क्या है, मेकिंग बेड, अपना रूम क्लीन करना, गेटिंग योर स्कूल डेज रेडी, ये है आजकल आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है. आजकल आपको वर्किंग एक्सपीरियंस क्या कर रहे हैं, बस आपका यहीं तक है. नाउ मैनी ऑफ यू हैव हेल्प्ड योर टीचर्स ऑल्सो in school, taking responsibilities, parents also with computers,
You must be teaching your parents with computers also, or on the internet also you must be assessing. You have to start somewhere and make a point to take steps every year to develop your experience. So that day I told you, अपने experience को हमेशा हम लोग को बढ़ाना चाहिए, छोटे छोटे targets रख के न्यू चीज़ें सीखनी चाहिए. साथ ही साथ you should develop a pattern of taking no more responsibility and increase your willingness to learn also. And it will not only make your parents proud. आप अगर ये सब चीज़ें करोगे, ये आपके पेरेंट्स को प्राउड नहीं फील करवाएगी, बट you will feel more confidence in yourself and you will be better equipped for job also, business opportunities also in future. ठीक है, इसलिए आप अगर कोई ये सब काम भी करते हो तो इसमें आपके अंदर कॉन्फिडेंस पावर रेज होएगी, आप अपनी जॉब के लिए नई नई चीज़ें सीख के जाओगे, साथ ही साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी ये आपके फ़ायदेमंद होएगी. सो एक्सपीरियंस इज़ वेरी पावरफुल टूल. सो चिल्ड्रन, ट्राई एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ व्हाट यू लर्न एंड यूज़ इट टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल. जो कुछ भी सीखो उसमें से ज़्यादा सीखो आप लोग, जिससे कि आप एकदम एक्सपीरियंस्ड हो जाओ एंड साथ ही साथ नेक्स्ट लेवल पे मूव करते जाओ. डोंट बी सेटिस्फाइड कि आज मैंने ये सीख लिया बट दैट मच इज़ इनफ. नो, कीप ऑन लर्निंग. थिंग्स जॉब आई डू एट होम, यहाँ पे लिखना क्या क्या आप घर में काम करवाते हो मम्मी के साथ, पापा के साथ, कुछ भी कुकिंग, स्टिचिंग, वॉशिंग, जो भी आप लिखोगे यहाँ पे. थिंग्स जॉब आई डू आउटसाइड एट होम, बाहर क्या करते हो, कुछ लोग परचेजिंग करने के लिए भी जाते होंगे, मम्मी के लिए सब्जी लाने जाते होंगे और कुछ भी काम करने जाते, दूध लेने जाते होंगे, ये सब आप लिख सकते हो यहाँ पे. उसके बाद स्पोर्ट्स, आर्ट, म्यूजिक, अकम्पलिशमेंट्स, अगर जिसने किसी स्पोर्ट्स में गेन किया है या आर्ट में कोई सर्टिफिकेट मिला है या पार्टिसिपेशन सर कुछ भी मिला आप उसको यहाँ पे लिखेंगे. फिर अदर एक्सपीरियंस एंड अकम्पलिशमेंट, इसके अलावा और भी कोई आपका अकम्पलिशमेंट्स है, अचीवमेंट्स है, यहाँ लिखेंगे. एक्सपीरियंस प्लान, आपका आगे प्लान क्या है, आप क्या करना चाहते हो अपना अचीवमेंट्स में, उसको यहाँ लिखना. ठीक है, उसके बाद आता है स्किल जो है अलाउज यू टू डू थिंग्स वेल. स्किल से क्या होता है, आप किसी चीज़ की ट्रेनिंग लेते हो, इससे जो आप कोई काम अच्छा कर सकते हो. आर यू गुड एट ड्राइंग, म्यूजिकल, एथलेटिक्स, टेलिंग स्टोरीज और जोक्स, वर्किंग वेल विद अदर्स, लीडर, हेल्पफुल टू अदर्स, टीम प्लेयर, गुड विद टेक्नोलॉजी, ग्रेट मेमोरी, गुड विद नंबर्स. क्या ये अंदर आपके अंदर क्वालिटी है? आस्क अदर पीपल व्हाट यू आर गुड एट. अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, दादा दादी से, यू कैन आस्क फ्रॉम देयर कि व्हाट आर द गुड क्वालिटीज which I am having, and you can jot down here. Okay, and list skills you have to write down all those skills here. उसके बाद the personal section is all about the things you like to do outside of school and work. स्कूल और वर्क के अलावा बाहर जो काम करना साथ चाहते हो, करते हो, दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल सेक्शन. एंड ये जो सेक्शन होता है, इट हेल्प्स टू गेट टू नो यू एज अ पर्सन. ठीक है, इससे आपकी अलग एक आइडेंटिटी बनती है. एजुकेशन के अलावा ना, एक्सपीरियंस के अलावा. कुछ लोग देखो स्कूल में भी देखा होगा, पढ़ाई के अलावा या स्कूल के कुछ और वक्त उन लोग कुछ एक्स्ट्रा सीखते हैं, जिससे कि वो स्कूल में अपने को डिस्प्ले भी करते हैं, एक्सपोज भी करते हैं कि हमने ये एक्स्ट्रा सीखा है. तो इस तरह से आप भी कुछ एक्स्ट्रा सीख के आप, इसको हम पर्सनल एक्सपीरियंस बोलते हैं. ये एरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एंड ये आपका स्पोर्ट्स रिलेटेड है, म्यूज़िक से, आर्ट, क्लब, और साथ ही साथ आपके इंटरेस्ट्स के रिलेटेड जो है आप नई चीज़ें सीख सकते हो. सो नेक्स्ट वी मूव टू पेज नंबर 50 नाउ. होपफुली योर पर्सनल डेवलपमेंट विल इंक्लूड टेकिंग एन इंटरेस्ट इन योर कम्युनिटी. आप कम्युनिटी का भी काम कर सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो पर्सनल में, आई हेल्प क्या कहते हैं, ओल्ड पीपल इन माई लोकेलिटी, इन माई कम्युनिटी, एंड साइड बाय साइड यू विल फाइंड इट रिवॉर्डिंग एंड एंजॉयबल. और ऐसा काम करने से आप इसको बड़ा enjoy भी करोगे. When I'm going to send you one beautiful video clipping in which a small child is helping all those people, old age people in the old age home, and he is feeling so happy in helping those people and giving them a simple flower and wishing them in the morning. So this is a very good gesture. This is also some personal development which you accomplish. Now अगर आप किसी क्लब या एसोसिएशन में, यू कैन राइट डाउन हियर. स्पोर्ट्स यू लाइक, यू कैन राइट डाउन हियर. थिंग्स आई लाइक टू रीड, यू कैन राइट डाउन हियर. अदर फन एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स आई लाइक टू डू, यू कैन राइट डाउन हियर. एंड अकम्पलिशमेंट अदर देन स्कूल एंड वर्क, स्कूल और वर्क के अलावा जो भी अकम्पलिश आप कर रहे हो या करना चाहते हो, यहाँ लिख सकते हो. सो इन दिस वे चिल्ड्रन, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कि आपके फ्यूचर करियर के लिए, डेवलप करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दिस इज गोइंग टू रियली चिल्ड्रन, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर फ्यूचर, okay, in accomplishing your dreams. So children, don't stop here. यही सोच मत ना हमारा रिज्यूम तैयार हो गया,
अभी तो 8, 9, 10th, 11th, 12th बहुत कुछ अचीव करोगे, और इसमें आप ऐड कर सकते हो इसको रेज्यूम में रेगुलरली, आप इसको अपडेट कर सकते हो, और बाद में क्या होगा, एक ब्यूटीफुल प्लान आउटले हो जाएगा जिसको कि तुम दिन पे दिन डेवलप करके अपना गोल अचीव कर सकोगे। और साथ ही साथ यू आर गोइंग टू सी दैट यू आर ऑल्सो ग्रोइंग, you will be also growing and blooming in a very fruitful way. So that's all. I finished my chapter 5. So children, completed. So next Friday and Saturday, or on Monday, on Monday I'm going to send you a link. You are going to send me this completed work, properly scanned in that group link. That's all. Thank you all, children.